beta. Turn on your videos, everyone. Very good morning. Unnecessarily, nobody will raise their hand. Keep turn on your videos, everyone. Till the class end, you will keep turn on your videos. Very good morning, Priyanshi. Still, some students are there who did not turn on their videos. Yes, it's good. So yes, not today, Priyanshi. I will disclose in tomorrow class. Okay. Rest of the students, yes, everyone. We will continue with the second chapter of history from trade to territory. But before moving ahead, it's important to revise some points that what we had discussed in yesterday class. कल हमने क्या पढ़ा था उसका एक जल्दी से quick revision ले लेते हैं. We had discussed about the influence and expansion of British in Indian territory. इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से एक्सपैंड किया. ठीक है, यही पढ़ रहे थे हम. कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आई जस्ट वांट टू नो हाउ मच यू हैव स्टडीड एट होम. सेल्फ स्टडी कितना किया आपने. हाउ मेनी एंग्लो मराठा वॉर was fought between Britishers and Marathas. Yes, Pawan Singh Rathore सबसे पहले हैंड रेज किया है. आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू. यस बेटा, व्हाट शुड बी द आंसर? मैम 4 wars. 4 war. And first Anglo Maratha war कब हुआ? In which year? बताइए. मैम 1766. मैं मैसूर वॉर पूछ रही हूँ या मराठा वार पूछ रही हूँ? चलो दैट वन आंसर. प्रियांशी आप बताइए. When the first Anglo-Maratha war was fought? Ma'am, fought from 1775 to 1782. Very good. It was fought in the year 1775 and continued till the 1782. Very good. Yes, Ishika. When was the third Anglo-Maratha war happened? Ma'am, 1817 to 1818. 1817 to 1818. And किसके बीच में हुआ? Fought between? Yes, हर्षिता आप बताइए. I think she had left. Harshita, are you listening me? Between the Marathas and Britishers. Between the Marathas and Britishers. And from Maratha, who fought from the side of Marathas? Dimple Ilani, आप बताएंगे. Dimple Ilani, tell me who led the war from the Maratha side? Better don't sit idle in class. And if you don't know the answer, why you are raising your hand?
यस लक्ष्य, बताइए बेटा। Who led the Marathas in the third battle of Anglo-Maratha War? किसने लीड किया मराठास को? अंश, you wants to tell? मैम शिवाजी। Is it true? Beta, there were 5 Maratha chiefs. Name of these 5 Maratha chiefs. प्रियांशी आप बताएंगे कौन कौन से 5 मराठा चीफ्स थे? Yes, Priyanshi, tell me the answer. मराठा, हाँ बोलिए। ओके फाइन, लेट मी टेल यू। नहीं पता है, यही वजह है कि हम घर पर बैठ करके सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं ना, किसी से भी आंसर नहीं आया है। देयर वर 5 मराठा चीफ्स, पेशवा, सिंधिया, गोखले, भोसले, गायकवाड़ और होलकर। यस, isn't it? क्यों आंसर नहीं आ रहे बेटा आप लोगों से? चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे। नो नीड टू रेज योर हैंड अंटिल इट इज नेसेसरी। आई डोंट वांट टू सी इट अगेन। दोबारा हैंड रेज नहीं होना चाहिए जब तक की जरूरत ना हो। चलिए एक क्विक रिवीजन मैं फटाफट आपको दे रही हूँ, आप इसको रिकॉल करते जाएंगे मेरे साथ साथ। देयर वर 4 मराठा wars, Anglo-Maratha wars happened between Marathas and Britishers. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ? 1775 से 1782 के बीच में, मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में। और इसका कुछ भी एंड नहीं रहा, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। एंड विद अ पीस ट्रीटी, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर fought in the year 1803. In 1803 between Maratha Empire and British East India Company. Again, it ended with a peace treaty of Basin. Third Anglo-Maratha War fought in the year 1817 to 1818 तक ये कंटिन्यू रहा। और किस किस के बीच में लड़ा गया? मराठास को मेन मराठा चीफ्स ने लेड किया। एंड द नेम ऑफ दीज 5 चीफ्स वर पेशवा, सिंधिया, होकर, भोसले, गायकवाड़। और ब्रिटिश आर्मी, इन अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी ये वॉर हुआ। और लास्टली मराठा जो है वो ब्रिटिशर्स के सबऑर्डिनेट बन गए। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर, टोटल 3 एंग्लो मराठा वॉर। और इसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे आज एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन, टूल्स ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन। First of all, it's very important to understand the meaning of annexation. What is annexation? क्या समझते हैं हम annexation से? Are you aware about the term? What is the meaning of this term, Hemant? What is annexation? पता नहीं मैम। नहीं पता। देखिए, annexation का मतलब होता है किसी पर अपना पोजेशन बनाना या किसी से फोर्सफुली उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लेना। ब्रिटिश गवर्नमेंट यही कर रही थी, अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन और इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का एनेक्सेशन। बेसिक हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? किसी के राज्य को हड़प लेना। दैट इज कॉल्ड एनेक्सेशन। ठीक है,
तो ब्रिटिशर्स जो थे धीरे धीरे ट्रेड के साथ में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को भी क्या कर रहे थे, दे वर इंक्रीजिंग. हाउ? बाय एनेक्सेटिंग द इंडियन टेरिटरी. कभी कभी इस एनेक्सेशन के लिए वो क्या किया करते थे, ट्रीटीज किया करते थे. ट्रीटी क्या होती है? ट्रीटीज कभी पीसफुल मैनर में होती थी कि बिना लड़ाई किए जो डोमेस्टिक रूलर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेशर को देखते हुए चुपचाप उनका एक्सेप्टेंस कर लेते थे और उनको अपनी टेरिटरी दे देते थे, अपने राइट्स उन्हें दे देते थे. दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ ट्रीटीज जो हुई है वो इसी तरीके का एनेक्सेशन है. अगर नहीं दोनों अग्री करते थे या डोमेस्टिक रूलर नहीं मानते थे तो ब्रिटिशर्स किसका यूज करते थे, वॉर्स का. ठीक है, फिर वो लड़ करके उनकी टेरिटरी को क्या कर लिया करते थे, एनेक्स कर लिया करते थे. बेसिकली एनेक्सेशन मींस क्या हो गया, एनेक्सेशन का मतलब कैप्चर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया फोर्सफुली और बाय विदाउट एनी वॉर. बेसिकली ये जो एनेक्सेशन की जो पॉलिसी है, एनेक्सेशन स्टार्ट किया या इसमें एक बहुत बड़ा या इम्पोर्टेंट रोल हम कह सकते हैं किसका रहा, लॉर्ड वेलेस्ले का. ठीक है, ही वॉज अ पर्सन और अ गवर्नर हु इंट्रोड्यूस दिस एनेक्सेशन. ठीक है, समटाइम इट हैपेंस विद वॉर और समटाइम इट हैपेंस विद ट्रीटी. कभी कभी वॉर का सहारा लिया जाता था या कभी ट्रीटी के जरिए भी डोमेस्टिक टेरिटरी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर लेती थी. ठीक है, आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल. आगे हम कंटिन्यू करेंगे. एनेक्सेशन किन किन स्टेट्स में हुआ. सो बेसिकली जो फेमस एनेक्सेशन है वो एनेक्सेशन है आपका एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड एनेक्सेशन ऑफ पंजाब. ठीक है, लेकिन इस एनेक्सेशन पे जाने से पहले थोड़ा सा हम सब्सिडरी अलायंस ट्रीटीज के बारे में बात करेंगे. जैसा कि मैंने कहा कि लॉर्ड वेलेस्ले वो पर्सन थे जिन्होंने इसे स्टार्ट किया. तो वी आर कंटिन्यूइंग विद सब्सिडरी अलायंस ट्रीटीज. मैं यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ, आप सब स्क्रीन पर ध्यान देंगे. देखिए, टूल्स ऑफ एनेक्सेशन सभी को दिख रहा है. मेन कॉजेज ऑफ एंग्लो वॉर के नीचे आ जाएंगे हम. कल हम डिस्कस कर चुके हैं मेन कॉजेज ऑफ एंग्लो मराठा वॉर. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू टूल्स ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन. सो tools of annexation and expansion, it become possible with help of treaties. Subsidiary alliance treaty. Subsidiary alliance treaty क्या था इसको समझेंगे. बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन आता है who started it. Subsidiary alliance treaty जो है वो किसने स्टार्ट किया, लॉर्ड वेलेस्ले ने स्टार्ट किया. ठीक है, now what was the subsidiary alliance treaty? So this was a system used by the Britishers for their expansion. अपनी टेरिटरीज को या प्रेसिडेंशियल कंट्रोल को बढ़ाने के लिए. आदित्य गंगवानी, आपको इसे कॉपी में नहीं लिखना है. एवरीवन, nobody will write down until I allowed. कोई भी नहीं लिखेगा अभी. आप लिखेंगे आई एम ओनली शेयरिंग दीज नोट्स ऑन स्क्रीन ताकि आप स्क्रीन पर ध्यान दें. ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपके सामने है. बाकी लिखने की जरूरत कहीं नहीं है बेटा. जब मैं आपको बोलूंगी ओनली देन यू विल स्टार्ट टू राइट. ठीक है, आपको ये नोट्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे. एंड वन मोर क्वेश्चन दैट मुस्कान गुप्ता यू आस्क्ड मी यस्टरडे दैट होमवर्क आपको कहाँ मिलेगा या होमवर्क के जो पीडीएफ है वो आप तक नहीं आ रहे हैं ग्रुप में. तो लेट मी टेल यू बेटा, वो पीडीएफ जो है आपकी वेबसाइट MCS जयपुर वाला जो पेज वेब पेज है, वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप देखेंगे रेगुलरली आपके होमवर्क, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स सब वहां पर आपको क्लास वाइज मिल जाएंगे.
तो यू कैन गो देयर एंड चेक. हर डे के अकॉर्डिंग आपका जो भी क्लास वर्क होता है, होमवर्क होता है, वो वहां पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है MCS जयपुर पे. इट इज फॉर ऑल. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए है, तो अभी आगे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि होमवर्क नहीं मिल रहा है. ओके, नाउ इट्स क्लियर. चलिए अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम. सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी क्या है? सो दिस इज अ सिस्टम यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर देयर एक्सपेंशन. अपने एक्सपेंशन के लिए ब्रिटिशर्स ये पॉलिसी यूज किया करते थे. ठीक है, समटाइम बाय फोर्स. जैसा कि मैंने कहा कि अगर डोमेस्टिक रूलर अपनी टेरिटरी देने को तैयार नहीं होते थे तो ब्रिटिशर्स को वॉर का सहारा लेना पड़ता था या उन्हें वॉर करना पड़ता था. तो समटाइम बाय फोर्स और समटाइम इफ दे इजीली गिव देयर टेरिटरी टू ब्रिटिशर्स, तो ट्रीटी के जरिए या पीस ट्रीटी के जरिए भी ऐसा किया जाता था. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? Subsidiary alliance policy. There was a condition, one more condition of this policy was, according to this policy, every ruler in India had to accept to pay a subsidy to the British for the maintenance of British army. कल हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली डोमेस्टिक रूलर से क्या कहा कि आपको अपनी आर्मी रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर कीपिंग इन आर्मी फॉर गिविंग यू प्रोटेक्शन. हम अपनी आर्मी से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. तो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी क्या कहती थी कि अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी every Indian ruler will pay a certain amount of money to Britishers for maintenance of ब्रिटिश आर्मी. ब्रिटिश आर्मी के मेंटेनेंस के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, सैलरीज प्रोवाइड करने के लिए सोल्जर्स को, और भी जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस हैं उन्हें पूरा करने के लिए इंडियन रूलर्स को क्या पे करना पड़ता था? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता था. अकॉर्डिंग टू दिस सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी. आई होप इट is clear to all. So now we are moving ahead with the annexation process. अब बात कर लेते हैं हम किसकी? annexation की. और annexation किसका? सिंध एंड पंजाब. तो we are starting with the annexation of Sindh. अपनी बुक्स आप खोल करके रखेंगे अपने सामने और आप आ जाएंगे पेज नंबर 18 पर, where it is given with name, topic is with the name annexation of Sindh and Punjab. कुशाल, what you are doing? बुक में ध्यान दीजिए. Everyone in your book, page number 18, topic is annexation of Sindh and Punjab. Again, I am sharing some document also on screen. You can keep your focus here also. बुक में भी देखते जाएंगे आप और जो मैं बोल रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे. So we are starting with annexation of Sindh. देखिए annexation of Sindh जो है, annexation of Sindh कब किया गया? So it done in the year 1843. annexation of Sindh कब हुआ? In the year 1843. ठीक है, तो annexation of Sindh किस तरीके से हुआ? स्टेप टू स्टेप हम इसको कवर करेंगे. A process through which Britishers bring nation Indian state under their direct control. वो क्या कहलाता है? annexation. पहले भी कहा था मैंने कि वहां पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो जाता था. So in 18th century, Sindh was ruled by group of Afghan rulers. जिस टाइम पर annexation का प्रोसेस स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग 18th century, उस दौरान सिंध वॉज रूल्ड बाय अफगान रूलर्स. और ये अफगान रूलर्स को क्या कहा जाता था? आमिर कहा जाता था. नाम सुना होगा, एक बहुत पॉपुलर नेम हुआ आमिर खुसरो. ठीक है, तो आमिर किनको कहा जाता था उस टाइम पर? अफगान रूलर्स को.
Afghan rulers who were having a control on Sindh. ठीक है. So in 1803, Britishers tried to expand their territory Sindh up to Sindh. सिंध तक उन्होंने अपने आप का कंट्रोल, ब्रिटिश कंट्रोल को एक्सपैंड करने का कोशिश किया. So in 1803 a treaty was signed between Britishers and Amirs. Amirs और Britishers के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, where Amir promised not to allow the French trade across these territories. और इस ट्रीटी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई. वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी? The Amir rulers will not allow. ब्रिटिशर्स का टफेस्ट कॉम्पिटिटर कौन था यहाँ पर? फ्रेंच. कल हमने डिस्कस किया था कि मैसूर रूलर वाज गिविंग सपोर्ट टू द फ्रेंच. किनको सपोर्ट दिया करते थे? फ्रेंच को दिया करते थे. तो इंडिया में ब्रिटिशर्स का एक टफेस्ट कॉम्पिटिटर थे फ्रेंच. नाउ ब्रिटिशर्स ने जब अपना एनेक्सेशन करना चाहा सिंध पर, तो उन्होंने सिंध के रूलर्स यानी कि आमिर्स के सामने ये टर्म या ये कंडीशन रखी कि आप अपनी टेरिटरी में फ्रेंच ट्रेडर्स को ट्रेड अलाउ नहीं करेंगे. ओनली ब्रिटिश कैन डू ट्रेड इन सिंध, नॉट द फ्रेंच. कोई आउटसाइडर हमारे अलावा इस टेरिटरी में ट्रेड नहीं करेगा. So in 1843, by an allegation on Amirs of plotting against English, Sir Charles Napier, I repeat, English Sir Charles Napier annexed the Sindh. तो देखो 1803 में ट्रीटी हुआ और ट्रीटी में क्या शर्त रख दी गई कि जो अफगान रूलर्स हैं, जो अमीर्स हैं, वो अपने स्टेट में फ्रेंच को ट्रेड नहीं करने देंगे, फ्रेंच ट्रेडर्स को ट्रेड नहीं करने देंगे और सिर्फ ब्रिटिशर्स आपके इस टेरिटरी में ट्रेड करेंगे. 1843 में अपना पूरा कंट्रोल सिंध पर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक प्लान बनाया और वो प्लान क्या था? टू एलिगेट द अमीर, टू एलिगेट द अफगान रूलर्स. उन पर दोष लगाया गया. एलिगेशन क्या होता है? किसी पर दोष लगाना, इल्जाम लगाना, अक्यूज करना. ठीक है. तो एलिगेशन लगाया गया कि दैट ये हमारी ट्रीटी की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और दे आर प्लानिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. मतलब ये हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं? कोई प्लान बना रहे हैं फ्रेंच के साथ में मिलकर. ऐसा एलिगेशन किसने लगाया? ब्रिटिशर्स ने. किस पर लगाया? अमीर्स पर. ठीक है. और the governor leading the Britishers, Sir Charles Napier, he annexed the Sindh. और 1843 में पूरी तरीके से सिंध की टेरिटरी पर किसका कब्जा हो गया? ब्रिटिशर्स का. There is a pic given in your book at page number 19. Everybody will see in your book page number 19. British territory in India in 1856. ठीक है. पिक दिख रही है आपको? इस पिक में, इस मैप में जितना भी हाईलाइटेड पर्पल एरिया है वो ब्रिटिश टेरिटरी को शो करता है. हाउ दे एक्सपेंडेड एंड एनेक्स देयर टेरिटरी इन द डोमेस्टिक रीजन्स. ठीक है. क्लियर है? अभी मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ आपको. एक पिक में शो कर रही हूँ. Yes, very good, Dimple. This one. Here I am showing a map of Sindh alone. यहाँ आपको पूरा इंडिया का मैप दिया गया है. मैं आपको स्पेसिफिकली वो सिंध रीजन का जो मैप है वो यहाँ पर एक बार शो कर देती हूँ. देखिएगा उसको. So yes, it is map of Sindh. So the green area is occupied by the British Army. ये जो पूरा रीजन है, ग्रीन से हाईलाइटेड एरिया है, ये पूरा का पूरा लैंड
ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया, या ब्रिटिश आर्मी ने एनेक्स किया, ठीक है, इन द ईयर 1843. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल. सबको समझ में आया बेटा? कंटिन्यू करें. यस ख्याति, कुछ डाउट है आपका? यू आर रेजिंग योर हैंड. ख्याति मेहरा, if you are hearing me, you can tell me. If you have any doubt, you can ask. चलिए, अगर नहीं है डाउट हम कंटिन्यू करते हैं. Now we are going ahead with annexation of Punjab. Annexation of Punjab पर आ जाते हैं हम. Second annexation जो हुआ. So annexation of Punjab, during the process of annexation, the Punjab was ruled by Maharaja Ranjit Singh. उस दौरान पंजाब में किसका रूल हुआ करता था? महाराजा रंजीत सिंह. Are you aware about it? Let me show you pic of Maharaja Ranjit Singh. It will be easy to understand it. So here is the pic of Maharaja Ranjit Singh. ठीक है, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनेक्सेशन ऑफ पंजाब के साथ में. So during that time period, the Punjab was ruled by Maharaja Ranjit Singh in the 19th century. And this state, I must say, was very disciplined, controlled and strong. जब महाराजा रंजीत सिंह वहां पंजाब रीजन को रूल कर रहे थे, पंजाब was quite affluent and quite strengthened. So during 19th century, the Sikh state of Punjab had expanded under Maharaja Ranjit Singh, as I told you, in 1809. A forced treaty was signed between Maharaja Ranjit Singh and Britishers. 1809 में ब्रिटिशर्स ने कोशिश की पंजाब को ऑक्यूपाई करने की, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए. तो जब वो ऐसा नहीं कर पाए, उन्होंने एक स्टेप लिया फोर्सफुली, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ में महाराजा रंजीत सिंह से एक ट्रीटी पर साइन करवाया. किसने? ब्रिटिशर्स ने. एंड इन विच महाराजा प्रॉमिस्ड नॉट टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी बियॉन्ड द ईस्ट ऑफ रिवर सतलज. इस ट्रीटी की शर्त क्या रखी गई, या कंडीशंस ऑफ दिस ट्रीटी वाज that the ruler of Punjab will not expand their territory beyond the Satluj river. सतलज रिवर के आगे अपनी टेरिटरी को पंजाब के डोमेस्टिक रूलर मतलब महाराजा रंजीत सिंह अपने स्टेट की टेरिटरी को सतलज रिवर से आगे एक्सपैंड नहीं करेंगे. ठीक है, दिस वाज द मेन कंडीशन ऑफ द ट्रीटी which was signed between Maharaja Ranjit Singh and Britishers in 1839. Until Maharaja Ranjit Singh was live, Britishers was not able to occupy the land of Punjab. तब तक ब्रिटिशर्स पंजाब की लैंड पर अपना कब्जा नहीं कर पाए जब तक महाराजा रंजीत सिंह was alive. ठीक है, after the death of Maharaja Ranjit Singh, and when it happened in 1839, Maharaja Ranjit Singh died, and after death of Maharaja Ranjit Singh, the throne of Punjab was succeeded by his son Maharaja Dalip Singh. ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के बाद में उनके जो बेटे थे दलीप सिंह, वो पंजाब के क्या फॉर्म हुए? नए महाराज फॉर्म हुए.
in 1843. Britishers defeated him and annexed Punjab in 1849. और महाराजा रंजीत सिंह की तरह महाराज दलीप सिंह बहुत ज्यादा स्टेब्लिश्ड नहीं हो पाए और 1849 में पंजाब की पूरी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया गया बाय द ब्रिटिशर्स. So here I am going to show the territory of Punjab, which was later annexed by British government. इधर हम मैप पे समझेंगे कि कितना ज्यादा एक्सपैंडेड रही पंजाब की टेरिटरी, जिसे बाद में किसने एनेक्स कर लिया, ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया या ब्रिटिशर्स ने उसे ऑक्यूपाई कर लिया. So here I am going to show image of that. देखिए, so this was the state of महाराजा रंजीत सिंह 1839 में, when he was alive, जब तक वो जिंदा थे तब तक ये टेरिटरी जो रही वो कौन सी टेरिटरी है, पंजाब की टेरिटरी. हम किस पंजाब की बात कर रहे हैं, आर यू अवेयर? सिंध एंड पंजाब की बात हो रही है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी पंजाब विच इज इन पाकिस्तान. देखो, ये इंडिया वाला पंजाब है, दिस वन, द in the yellow it is the Punjab which is in India. और ये जो ग्रीन में पंजाब रीजन दिख रहा है आपको, ये है आपका पंजाब which is situated in पाकिस्तान. ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह की टेरिटरी आप देख सकते हैं. ये कंप्लीट टेरिटरी was अंडर कंट्रोल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. और जो ट्रीटी, फोर्स ट्रीटी साइन किया गया था ब्रिटिशर्स और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि आप अपनी टेरिटरी को बियॉन्ड द सतलुज रिवर एक्सपैंड नहीं करेंगे. तो ये देखिए यहाँ पर ये सतलुज आर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको. ये सतलुज आर क्या है, दिस ब्लू लाइन इज सतलुज रिवर. इसके आगे, इससे बियॉन्ड जाकर, दैट मीन्स पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली वाली जो टेरिटरी है, वो आप वहां तक अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे. ये कंडीशन रखी गई बाय द ब्रिटिशर्स इन फ्रंट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह व्हेन दे वर साइन द फोर्स ट्रीटी. इज इट क्लियर टू ऑल? आई होप इट शुड क्लियर टू ऑल. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड. इफ नॉट, वी विल कंटिन्यू. Nobody wants to ask, बेटा, किसी को नहीं पूछना है, हम कंटिन्यू करें. And why you all turned off your videos? What I had said, क्या कहा था मैंने? Nobody will turn off the video. Should I remove one by one? Yes. Who is here in the class with name of Redmi? First of all, I unmuted you, beta. What's your name? मैम भवांशी. भवांशी बेटा, आप रीनेम कीजिए अपने आप को. अगर आप नहीं करेंगे आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी. ओके मैम. ठीक है. डू यू हैव एनी डाउट दैट यू वांट टू आस्क? नो मैम. फाइन. चलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे. After annexation of Sindh and Punjab, now the British government becomes successful to occupy a vast land in India. बहुत हद तक इंडिया के डोमेस्टिक रूलर्स की जो टेरिटरी थी, उन्हें अपने ऑक्यूपाई कर लिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू. अंश, व्हाट हैपेंड? अंश देवरा, आर यू स्लीपिंग इन क्लास? Be attentive, everyone. Yes, so we are talking about after annexation of Sindh and Punjab, the position of British Army become very strong in India. बहुत
तो ज्यादा क्या हो गई, हम कह सकते हैं जो पोजीशन थी ब्रिटिश आर्मी की वो काफी हद तक स्ट्रांग हो गई आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड पंजाब. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग अहेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. व्हाट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था. इट वाज अ पॉलिसी दैट वाज फ्रेम्ड बाय अ ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट. अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक पॉलिसी बनाई. कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी व्हाट कंडीशंस they place in front of the domestic rulers of India. Let it understand. First of all, this doctrine of lapse introduced by whom? It was introduced by Lord Dalhousie. ठीक है, तो सबसे पहले जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है वो किसके थ्रू इंट्रोड्यूस की गई? बाय लॉर्ड डलहौजी. ठीक है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, एनी स्टेट विदाउट देयर नेचुरल हायर विल बी एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश. नेचुरल हायर का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो, for an example, any Indian state, any state which is owned, which is ruled by a domestic ruler, or if that ruler not have its own son, अगर उसके पास में उनका अपना बेटा नहीं है. नेचुरल हायर का मतलब क्या होता है? इफ अगर किसी भी किंग के पास में उसका अपना नेचुरल हायर नहीं है, मतलब अपना उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ऐसे केस में अडॉप्टेड सन को नेक्स्ट रूलर नहीं माना जाएगा. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ अ किंग डू नॉट हैव एनी चाइल्ड, सो दे कैन नॉट अडॉप्ट एनीवन, क्योंकि अडॉप्टेड चाइल्ड को नेक्स्ट रूलर नहीं बनाया जाएगा. सो एनी स्टेट विदाउट नेचुरल हायर will be annexed by British. जिनके ऐसा अडॉप्टेड सन है अगर किसी किंग का, तो उसे आगे रूल नहीं करने दिया जाएगा. तो उसकी टेरिटरी का क्या होगा? इट विल बी एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर. ब्रिटिशर्स उस पर अपना डायरेक्ट कंट्रोल कर लेंगे. ठीक है, so there were some main kingdoms which was simply annexed by the Britishers according to the doctrine of lapse. इस doctrine of lapse के थ्रू इंडिया में बहुत सारे ऐसे किंगडम्स थे जिन्हें ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया या एनेक्स कर लिया. और दिस एनेक्सेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम 1848, और 1848 से 1854 के बीच में कुछ स्टेट्स जिनको ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया उनके नेम हम ले सकते हैं, सच एज सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर and Jhansi. These were some kingdoms which was simply annexed by the Britishers. ठीक है, बहुत आसानी से, क्योंकि ये जो किंगडम थे they don't have their natural hire, or in the absence of the natural hire, it was very easy for Britishers to capture their territories or took direct control over these kingdoms. ठीक है, so name of these kingdoms were Satara, Sambalpur, Udaipur, Nagpur and Jhansi. I hope it is clear. Annexation की जो प्रोसेस थी वो इन स्टेट्स इन किंगडम्स बहुत इजी रहे, बट वेयर एनेक्सेशन वाज नॉट इजी, कहां पर एनेक्सेशन इजी नहीं रहा या ब्रिटिशर हैड टू फेस डिफिकल्टीज टू एनेक्स द टेरिटरी, ऐसी कौन सी किंगडम था, ऐसा कौन सा किंगडम था जिसे ब्रिटिशर्स इजीली कैप्चर नहीं कर पाए? सो it was the annexation of Awadh in 1856. Awadh
को जब एनेक्स करने की कोशिश ब्रिटिशर्स ने की इन द एब्सेंस ऑफ द नेचुरल हायर, इट क्रिएट अ लॉट ऑफ टेंशन और अनरेस्ट अमंग द पीपल. लोगों के बीच में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो गई, बहुत अशांति फैल गई, या लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी. और ये जो एंगर था, ये जो अनरेस्ट था, ये अनजस्टफुल जो लॉ फ्रेम किया गया था बाय द ब्रिटिशर, दैट सून टर्न इनटू अ रेवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. और बहुत जल्दी इस प्रोसेस ने रेवोल्ट का रूप ले लिया. ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे. व्हाट द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया. बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेक सम doubts if you guys have. So Vedanshi, what do you want to ask, beta? It is Vedanshi or Excuse me, ma'am. yes beta? मैम वो गलती से मैम, माय नेम इज भवांशी मैम, वो गलती से वेदांशी. हमने वेदांशी के नाम से क्यों किया? ओके, लेट मी रीनेम यू. आप नहीं करेंगे, मैं आपको कर देती हूँ. मैम यस भवांशी. मैम इससे पहले के पेज शो कर दीजिए एक बार. नहीं बेटा, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई विल फॉरवर्ड द नोट्स ऑफ कंप्लीट चैप्टर इन अ पीडीएफ फॉर्मेट. ओके मैम. ठीक है बेटा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी ये इन पीडीएफ फॉर्म. और आप एमसीएस जयपुर वाला जो हमारा साइट है स्कूल का, उस पर जाकर के एक बार चेक कर लेंगे डेली अपडेशन के लिए. यस मैम. यस मुस्कान गुप्ता, व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटा? मैम हमें एक स्कूल से पीडीएफ मिली है मैम, उसमें इस चैप्टर के सारे नोट्स हैं मैम. इस चैप्टर के सारे नोट्स हैं मैम? उसमें दिए हुए तो है मैम, वो ऑल सब्जेक्ट्स की मिली है, उसमें एसएसटी भी है मैम, मैंने देखे थे. हाँ, तो बेटा वो सर्टेन पार्ट होगा दैट आई हैव ऑलरेडी सेंट इट, है ना? तो वो जो Okay. पीडीएफ है वो उसमें कुछ एक सर्टेन पार्ट होगा. इसका कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको चैप्टर ऑन द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर आई विल फॉरवर्ड. ठीक है? ओके मैम. यस अंकिता, व्हाट यू वांट टू आस्क? मैम वो स्कूल की आईडी है जो मैम हमने उस पे खोल के देखा था, तो मैम उस पे सिर्फ एसएसटी में मैम वो ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 ही डाल रखा है, वो भी नोट्स, और तो डाल ही नहीं रखे उस पे. बेटा एक्चुअली वी हैड स्टार्टेड दिस प्रोसेस फ्रॉम द लास्ट वीक. तो जो भी प्रीवियस नोट्स हैं वो भी आप तक पहुंच जाएंगे. आई विल फॉरवर्ड इट अगेन टू दैट साइट, है ना? मैं आपका जो अपलोड करना है, जितना भी प्रीवियस वर्क है वो सब भी साइट पर अपलोड हो जाएगा. आई विल फॉरवर्ड इट सून. यस मैम. व्हाट अबाउट यू कविश, क्या पूछना है आपको? बेटा पूछिए. मैम हाँ, जो एमसीएस जयपुर वाली वेबसाइट का लिंक बता दो. लिंक बता दूं? बेटा यू कैन सर्च इट डायरेक्टली ऑन गूगल. एमसीएस जयपुर के नाम से आप सर्च मैम, करेंगे, search यू किया कैन था. फाइंड इट द पेज. मैम स्कूल का पेज आ रहा है वो तो. आपको मिल जाएगा एमसीएस जयपुर वाली साइट पर. ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा. वी आर मूविंग अहेड विथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर अगर हम आते हैं तो दिस इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट was based on 3 pillars. Mainly 3 pillars पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिपेंड था. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर? What do you understand with administrative structure? Anyone? First of all, turn on your video. How many time I have to say it? कितनी बार कहना पड़ेगा बेटा? I'm repeating it again and again. Turn on your videos. Keep turned on until the class over. Aditya Gangwani,
Are you not listening? Okay, fine. You are not aware about the administrative policies, administration basically अगर हम हिंदी में बोलें इसको तो हम बोलते हैं प्रशासनिक. All the departments, the work or the policies framed by the elected government comes under the administrative control, comes or calls administrative control. जितना भी कुछ डिपार्टमेंटल वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सब से मिलकर के हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जिसमें कि बेसिकली हम सिविल सर्विसेज को काउंट करते हैं, पुलिस को काउंट करते हैं, या हम काउंट करते हैं हमारी डिफेंस सर्विसेज को. ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. तो ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं. देयर वाज थ्री पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नेम्ड सिविल सर्विसेज, आर्मी एंड पुलिस. ये तीन मेन पिलर थे जिन पर पूरा का पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टिका हुआ था. ठीक है, सो अगर हम आ जाते हैं सिविल सर्विसेज पर, हु इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विसेज? इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. एंड हु वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस? कौन थे लॉर्ड कॉर्नवालिस? यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट हिम. हु वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस? Exactly, Ishant, very good. Lord Cornwallis was the Governor General of India, the third Governor General of India. Sorry, I should say second Governor General of India, right? So we are starting with the civil services. पहला जो पिलर है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का वो है सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज नाम सुना है हमने. बेसिकली जो भी रिक्रूटमेंट होता था आईएएस, आरएएस और हायर ऑफिसर रैंक और सबऑर्डिनेट रैंक, वो एक एग्जामिनेशंस के थ्रू जैसे सिलेक्शन होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसमें आपका इंडियन फॉरेन सर्विसेज आ जाता है, फॉरेस्ट सर्विसेज आ जाता है, या आपका आईएएस होता है, आरएएस होता है. दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सिविल सर्विसेज. So we are talking about who introduced these civil services in India. It was introduced by Lord Cornwallis. What he framed, different policy he framed to introduce strict regulation, promotion, salaries, increments. तो डिपार्टमेंट्स में जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे फिर वो हायर अथॉरिटीज, हायर रैंक पर हो, रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? टू इलेक्ट द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब. जैसा कि अभी हम देखते हैं ना कि हम बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, बैंक्स के लिए होते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस आरएएस के लिए होते हैं. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट है ना. रिक्रूटमेंट मतलब चयन करना, चुनना, द बेस्ट आउट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. So, according to the Lord Cornwallis, he introduced strict regulations. उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करने के जो तरीके थे, उनके लिए बहुत सारे पॉलिसीज फ्रेम किए. ठीक है, कि किस काम को किस तरीके से किया जाना चाहिए. He put several restrictions on that also. इसके अलावा आप किसी जॉब में हैं तो how you can grab the promotion, how can the salary be enhanced, इसको लेकर के बहुत सारे रूल्स जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेटअप किए. अगेन अपॉइंट यंग रिक्रूट्स, नए लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इस सिविल सर्विसेज में. 1853 में रिटन एग्जामिनेशन को एक मीडियम बनाया गया रिक्रूटमेंट का, कि अगर नए लोगों को रिक्रूट करना है, नए लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, so we will select only the eligible candidate. How? By check them their skills in the written examination. किसी को भी रिक्रूट करने से पहले, जॉब देने से पहले हम उसको रिटन एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है उसे क्लियर करने के लिए कहेंगे. ऐसा स्टार्ट हुआ. कब प्रोसेस स्टार्ट हुआ? रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन 1853.
So it was all about the first pillar of British administrative system, which is civil services. Now we are coming on to the other pillar of British administrative system, and which was army. So army, it was also a very important pillar of British administrative system because it helped Britishers to conquer the Indian territories. वो ब्रिटिश आर्मी ही थी जिसकी मदद से ब्रिटिशर्स इंडिया की टेरिटरीज को, इंडिया के डोमेस्टिक रूलर्स को हराते हुए इंडिया की टेरिटरीज को कैप्चर कर पाए. मेजर पार्ट ऑफ दिस आर्मी कंसिस्टेड इंडियन सिपॉयज. लेकिन एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो भी ब्रिटिश आर्मी थी उसमें ज्यादातर सिपॉयज जो थे वो कौन थे? इंडिया के ही लोग थे, इंडिया के ही रिक्रूट किए गए पर्सन्स थे. तो द सिपॉयज, हिंदी सिपॉयज क्या है बेटा? ये सिपाही जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं. ब्रिटिशर्स इनको उनका असेंट थोड़ा डिफरेंट होने की वजह से क्या प्रोनाउंशिएट किया करते थे? सिपॉय बोला करते थे, क्योंकि वो ठीक से हिंदी में नहीं नाम ले पाते थे. सिपाही, सिपॉय, ठीक है. सो द मेजर पार्ट ऑफ देयर आर्मी, ब्रिटिशर्स की आर्मी में एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन सिपॉयज का था. सिपॉयज वर वेल ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड एंड आर्म्ड विद मस्केट्स. ठीक है, मस्केट्स क्या है पता है हमें? Generally the weapons which were used by the British soldiers. तो ये जितने भी सिपॉयज थे. हाँ जी ख्याति, क्या कहना है आपको बेटा? Why you are raising hand again and again? Tell me beta what you wants to say. ख्याति मेहरा. May I know the reason why you are continuously raising your hand? कितनी बार बताना होगा ख्याति आपको कि बेटा ये नोट्स कॉपी में नहीं करने हैं. अनलेस आई विल फॉरवर्ड इट टू यू. जब तक मैं आपको नहीं कहूंगी आप नहीं करेंगे. पीडीएफ जैसे ही आपके पास आएगा आप इसको अपनी कॉपी में कर सकते हैं. ठीक है. So now we are moving ahead. Most of the Indian sepoys or the British sepoys, they were less with the new weapons and muskets. They were disciplined, बहुत well trained, disciplined होते थे और armed होते थे with muskets. इनके हाथों में muskets होते थे. So the police, next pillar of British administration is police. Police generally organized regular पुलिस फोर्स. ब्रिटिशर्स ने रेगुलर पुलिस फोर्स को ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू किया. मेनली पुलिस का काम क्या होता था? पुलिस जनरली असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी जज बनाए गए, आइदर द यूरोपियन जज और द मुस्लिम जज. उस टाइम पर इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो भी जज थे, आइदर वो यूरोपियन जज थे या मुस्लिम जज थे, उनको असिस्ट करने के लिए जो यूरोपियन जज थे, बेसिकली उनके लिए हेल्प था कि यूरोपियन जज इंडिया के ट्रेडिशनल लॉ एंड ऑर्डर के पैटर्न को समझ पाए. उसके लिए उन्हें असिस्ट करने के लिए इंडिया के ही लोगों को पुलिस में अपॉइंट किया जाता था एज पुलिस फोर्स. रेगुलरली ऑर्गेनाइज किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स. ठीक है. तो ये क्या किया करते थे? मैजिस्ट्रेट को हेल्प करने के लिए होते थे. सेकेंडली, डिस्ट्रिक्ट्स में देयर वाज थानास अंडर द चार्ज ऑफ दरोगा. हर डिस्ट्रिक्ट में थाना, आज की डेट में भी हम देखते हैं ना पुलिस थाना, वही थाना है ये. तो इट वाज मेड कंपल्सरी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू establish a थाना in every district, in each and every district. ठीक है. थाना स्टेब्लिश किए गए और इन थानास को चार्ज किया गया अंडर अ पर्सन एंड द पर्सन नोन एज दरोगा.
हर एक थाना का कंट्रोल एक पर्सन के पास में होता था और उसको लोग क्या किस नाम से जानते थे, दरोगा के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विलेजेस की, तो विलेजेस में जिस तरीके से सिटीज में कोतवाल हुआ करते थे उसी तरीके से विलेजेस में चौकीदार हुआ करते थे, ठीक है। व्हाट वाज देयर वर्क, चौकीदार का काम क्या होता है, एक आप कह सकते हैं द गार्ड, अ प्रोटेक्टर ऑन टेरिटरी, है ना, चौकीदारी का काम उसका होता था। एंड इसी तरीके से सिटीज या टाउन में जो पोस्ट विलेजेस में चौकीदार की थी, वही पोस्ट या वही रैंक सिटीज या टाउन्स में किसकी हुआ करती थी, कोतवाल्स की, ठीक है। So it is all about the administrative structure, civil services, police and army. इसके बाद में आ जाता है आपका जुडिशियल सिस्टम, और जुडिशियल सिस्टम को ऑलरेडी वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। मैंने आपको बताया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट वॉरेन हेस्टिंग्स, जब हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि इंडिया में नया लॉ एंड ऑर्डर को फ्रेम करने वाले जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हुए इंडिया के, वॉरेन हेस्टिंग्स, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक है। ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सेट अ न्यू लॉ एंड ऑर्डर और टू सेट अ न्यू जस्टिस पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, पहला जो कोर्ट फॉर्म हुआ या कोर्ट बनाया गया जिसको कि हम विलियम फोर्ड के नाम से भी जानते हैं, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा बिकॉज ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। एक नया सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया इन 1773 बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, यस। तो नया लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा बुक में ध्यान देंगे, Warren Hastings began the system of providing, come on everyone, come at page number 20 in your books where we will discuss the judicial system. Judicial system पे आइए। Warren Hastings began the system of providing justice through civil and criminal code. Warren Hastings ने कौन सा सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, सिविल और क्रिमिनल कोड्स, फौजदारी और कौन सी अदालत होती थी, बताइए, फौजदारी एंड दीवानी अदालत, है ना। कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था जब हम वॉरेन हेस्टिंग्स को डिस्कस कर रहे थे ना इन द प्रीवियस क्लास। सो वॉरेन हेस्टिंग्स सेट अप द इंडियन पैनल कोड, एक लॉ कमीशन 1833 में वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मिलकर के एक कमीशन सेट किया, एंड दिस लॉ कमीशन वाज कॉल्ड इंडियन पैनल कोड। यू कैन फाइंड इट इन योर बुक इन द जुडिशियल सिस्टम, पेज नंबर 20 पे आपको मिल जाएगा जुडिशियल सिस्टम। इन द सेकेंड पैराग्राफ यू कैन फाइंड इट। इन 1833 with the collective efforts of Warren Hastings and Lord Cornwallis, they set up law commission which is called Indian Penal Code, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं किस पर, कंक्लूजन पर। तो क्या कंक्लूजन निकलता है पूरे चैप्टर से, व्हाट यू कैन कंक्लूड, हु विल एक्सप्लेन मी। पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में क्या कुछ ऑब्जर्व किया आपने? Yes, Ishant, you want to explain? मैम ब्रिटिश इंडिया में ये बोल के आए थे कि हम यहाँ पर व्यापार ट्रेड करेंगे, लेकिन वो है ना ट्रेड से धीरे धीरे बढ़ के इंडिया की टेरिटरी को है ना कब्जाने लगे, एनेक्स करने लगे। First of all, try to speak in English. We are not in Hindi class. ठीक है? You can use Hindi a little bit to explain your topic, but try to give your answer in English. ठीक है? Fine, we can understand what you want to say. Anyone else who want to explain it? एकलव्य, कविश, कौन बताना चाहेंगे बेटा? Raise your hand fast. Who will tell the conclusion of the chapter? Nobody wants to tell. क्या चैप्टर नहीं पढ़ा है हमने? Yes, हर्षिता.
You can explain, beta. Harshita Madnani. This chapter tells that how British came to trade in India and how they slowly capture our territories. Very good. So the chapter tells us why the Britishers came to India. Initially, they came to India for the purpose of trade. They want to expand their trade in the Indian territories. But later, their intention got changed and they started to annex and control the Indian territories. धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के टेरिटरी को एनेक्स करना, कंट्रोल करना स्टार्ट किया एंड दे बिकम सक्सेसफुल. और इस चीज में वो क्या हुए, कामयाब भी हुए. आफ्टर दैट दे इंट्रोड्यूस डिफरेंट चेंजेस, रिफॉर्म्स दे इंट्रोड्यूस इन द इंडियन इकोनॉमी. इंडिया की इकोनॉमी में, इंडियन कंट्री में बहुत सारे चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए रिगार्डिंग द law and order, the administration, the trade and other treaty and policies introduced by them. Yes, Priyanshi, what you want to tell, beta? You want to say something, Priyanshi? मैम कंक्लूजन ही बताना था मैम, हर्षिता ने जो बताया. Okay, fine, beta. So you want to add something? नहीं करना है? Is it same? यस मैम. चलिए ठीक है. So it is all about the chapter. Here we have completed our chapter 2 from trade to territory. Your homework is you will find out the answers of the exercise given at the back of the chapter. आपके जो book में आपका जो chapter where it ends, एक exercise given है, MCQs questions are given there, fill-ups, true false. You will find it by yourself. आपका काम आज का क्या है, आप अपनी exercise के question answers find out करके रखेंगे. In tomorrow class, we will discuss the answers of these questions. ठीक है, कल हम इसको check करेंगे और साथ ही साथ सिर्फ चेक ही नहीं करेंगे, आपसे पूछे भी जाएंगे क्वेश्चंस. सो बी रेडी फॉर दैट. आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल. यस Yes, ma'am. So this is your work for today. You will find out the answer